the 4 experiments in total to perform, right? So this is the second one, that is first already we have done, it's of paper chromatography. Second is study of the distribution of the stomata in the upper and the lower surface of the leaf, right? This experiment, the 2 experiments which I have written, these are also for performing, not for just observation. Okay, spotting के लिए नहीं है, ये performing के लिए है. तो पहले मैं आपको इसका वीडियो दिखा रही हूँ, how they are performing and what changes we will be committing in that. ठीक है, first you should see what the leaf they are taking, how to peel the surface, upper surface or the lower surface of the leaf. ये सारी चीजें पहले आप वीडियो से देखेंगे. Then I'll be telling you about the changes which we will be producing for the first experiment which I'm going to conduct here. That is to show here through the video, and that is the study of the distribution of the stomata in the upper and the lower surface of the leaf. Okay, so just hold on, let me share this with you. हाँ जी बेटा, ठीक है, you can see this, right? Study of stomatal distribution on leaves. Stomata are minute aperture-like structures found on the epidermis of the leaves and young shoots of plants. Distribution of stomata varies in different plants between monocots and dicots, between plant species, and between the underside and top sides of the leaves of a plant. Usually, the surface in the back of the leaf has a greater number of stomata, while the monocot leaf, they are about equal on both surfaces. In most floating plants, stomata are found only on the upper epidermis. Materials required: fresh leaf of 4 o'clock plant, saffron in solution, glycerine, distilled water, forceps, needle, blade, brush, watch glasses, glass slides, cover slits, dropper, and microscope. Procedure: take 2 watch glasses and pour some distilled water into both watch glasses. Take 1 fresh leaf of the 4 o'clock plant. Tear the leaf from the 4 o'clock plant to weakly. Take the peel from the upper surface of the leaf using a forceps. Put the peel into a watch glass containing water. Take another peel from the lower surface of the leaf using the forceps. Put the peel into another watch glass containing water. Using a dropper, take a few drops of saffron in solution from the bottle and put it into the 2 watch glasses. Take 2 clean glass slides and place the leaf peel on the slides one by one using a brush. Take a blade and cut a small rectangle or square piece from each peel. Take some glycerine using a dropper and put 1 drop of glycerine on both slides. Take a cover slip and place it gently on the peel with the help of a needle. Take the glass slide and place it under the compound microscope. Observe under the microscope. Count the number of stomata in the peels of both the upper and lower epidermis of the leaf appearing in the microscopic field. बेटा here for the experiment हम लोगों ने एक सिंगल फोकस में, ठीक है, एक सिंगल फोकस में आपकी जो काउंटिंग है वो करनी होती है. लाइक यहाँ पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, दिस इज 1 फोकस बिलो द माइक्रोस्कोप्स ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, just by keeping it under 1 focus, you are not to rotate the whole slide and count the stomatas for the whole slide.
ठीक है, एक फोकस के अंदर सिर्फ आपने काउंट करने हैं हाउ मेनी स्टोमेटास आर देयर, दे विल बी कंपैरेटिवली मोर इन द लोअर सरफेस, ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे लेकिन आपको हार्डली देखने में पता लगेगा दैट दे आर कंपैरेटिवली मोर, ठीक है। एंड व्हेन यू आर टू शो दिस स्लाइड टू द ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर को स्लाइड जरूर दिखानी होती है, उसके एग्जामिनर के नंबर होते हैं, एग्जामिनर हाउ दे आर मार्किंग योर स्लाइड, राइट। तो जब आपने शो करनी है, आपने दोनों माइक्रोस्कोप्स अपर एंड लोअर सर्फेसेस दोनों एक साथ शो करने हैं, ठीक है। Arrange two microscopes together and place your both the slides together, one with the upper and one with the lower epidermis, ठीक है, जिसकी आपने एपिडर्मल पील्स लिए हैं अपर एपिडर्मिस से या लोअर एपिडर्मिस से, तो वो दोनों टुगेदर आपने रखनी होती है स्लाइड्स, ठीक है, इकट्ठी रख के आपने शो करनी है। इवन यू कैन यूज द टेम्परेरी मार्कर्स, ठीक है, आप अपनी टेम्परेरी मार्कर लेके आएंगे फॉर योर प्रैक्टिकल पेपर। आप अपनी स्लाइड पे टेम्परेरी मार्कर में साइड पे एक तरफ लिख सकते हैं U and L, ठीक है, that this signifies this is for the upper epidermis and this is for the lower. Sometimes what happens is when you are showing it to the examiner, आप ऑब्जर्वेशन वर्ड बोल देते हो तो आपके नंबर गलत लग जाते हैं। सपोज आपने कहना था कि अपर के लिए आपने कहना था कि लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर विजिबल, ठीक है, इन द स्लाइड, राइट, बट यू से हियर आर मोर एंड देयर आर लेस, तो वो उल्टा ऑब्जर्वेशन हो गया दो माइक्रोस्कोप्स का, तो जैसे ही ऑब्जर्वेशन उल्टा हुआ आपके नंबर एग्जामिनर ने काट देने ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बिकॉज आफ्टर द एक्सपेरिमेंट देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड योर ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द कंक्लूजन, व्हाट यू से, ठीक है। Observations. In the leaf of the 4 o'clock plant, the number of stomata is greater in the lower epidermis and fewer are present in the upper epidermis. Also when you focus the two slides ना, आप उसी एरिया को फोकस करेंगे जहां पे आपको मोर और लेस का कंपैरिजन नजर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि एक जगह पे ज्यादा अगर कंजस्टेड से हमारे पास टोमेटोज नजर आ रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, हमने पील ऐसा लिया है या वो फोल्ड हो गया है, उसकी वजह से ऊपर नीचे हमें टोमेटो ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन फिर से गलत करेगा, ठीक है। तो दैट माइंड यू हैव टू अप्लाई, राइट, यू हैव टू से वेदर वी आर मेकिंग द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एज पर अवर रिक्वायरमेंट और नॉट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यही आएगा, लोअर सरफेस पे हमेशा ज्यादा आएंगे एज इन कंपैरिजन टू द अपर सरफेस, ओके। Precautions. The curling of the peel should be avoided. Always use a brush to transfer the peel from the watch glass to the slide. This is very much required that if you are not basically using the brush to transfer it, then there will be definitely the folding of the peel, ठीक है, फोल्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से मैंने अभी बताया आपको कई बार ऑब्जर्वेशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, विजिबिलिटी गलत हो जाती है और हमारा जो कंटेंट है हम लोग शो नहीं कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन दे नहीं पाते अपनी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू विद दीज लीव्स जो उन्होंने शो किए हैं, द स्मॉल साइज ग्रीन लीव्स है ना जिसको फोर्सेप्स से दे रहे हैं, विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्टन लिली लीव्स और द ट्रेडिस्केंशिया प्लांट है यहाँ पे, उसके थोड़े लीव्स हार्ड होते हैं, ठीक है, थोड़े से टफ होते हैं, एज यू ब्रेक इट ब्रेक्स इनटू टू विद द पील, ठीक है, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे वो पील आपको हल्का सा उसमें विजिबल नजर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी आप उसको तोड़ते हो और रादर आप उसको स्लाइड करोगे, ऐसे तोड़ा लीफ को और स्लाइड किया आपने तो आपको पील बड़े आसानी से मिल जाती है उसमें से, ठीक है। सो यू टर्न इट टुवर्ड्स द लोअर सरफेस, यू गेट लोअर पील, यू टर्न इट अगेंस्ट द अपर सरफेस, यू गेट द अपर पील, ठीक है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, आप जिस तरफ उसको फोल्ड करोगे उसी तरफ से आपको पील मिलेगी, सिर्फ इतना सा चेंज। बाकी सैफरनिन के साथ स्टेडिंग भी कर सकते हैं आप, रेड कलरेशन में मिलेगी, नहीं तो आप मिथाइलिन ब्लू के साथ भी कर सकते हैं, ब्लू कलर का स्टेन होता है, लेकिन ब्लू कलर का बहुत ज्यादा डार्क भी हो जाता है, बट अगर आप उसकी अच्छे से वॉशिंग करते हो वाटर में, जैसे इन्होंने रखा ना वॉश क्लास में, वाटर में रखा फिर मिथाइलिन ब्लू डाला, तो वो वॉशिंग से ओवर स्टेन निकल भी जाता है। Again, the slide as it is stained, as the observations are made, that will be all giving you the marks for your observation. मैं अभी आपको सेकंड यहीं पे पहले वीडियो दिखा देती हूँ, that is for the rate of respiration. Just hold on. रेट ऑफ रेस्पिरेशन है देखना यहाँ पे, हाँ जी, लीफ का अपर एपिडर्मिस जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड होता है और लोअर एपिडर्मिस जो होता है वो लेस स्टेन्ड होता है, नहीं उल्टा बोल दिया, लीफ तो ऐसे ही होता है, वो देखने में कलरेशन डिफरेंस पता चल जाता है ना, आप लगे पड़ पे देखोगे, हाँ ऊपर से डार्क होगा नीचे से लाइटर होता है कंपैरेटिवली,
हाँ नीचे से, अगर आप इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देते हो तो वो अपर एपिडर्मिस मिल जाएगी, नीचे की तरफ फोल्ड कर दोगे, नीचे से स्लाइड करोगे तो वो आपको लोअर एपिडर्मिस मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने खुद से परफॉर्म करनी है, राइट? ओके, सो दिस इज बेटा, आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस अगेन, अनदर एक्टिविटी दैट इज showing the rate of respiration in the germinating seeds. ठीक है, so let us first see the video and then I describe what changes we want. Rate of respiration. Respiration is the process during which simple carbohydrates like glucose break down into simpler substances and liberate carbon dioxide and energy. The compound used or oxidized during respiration is called the respiratory substrate. Carbohydrates, fats, and proteins are examples of respiratory substrates. The rate of respiration can be measured in terms of gas exchange, that is, consumption of oxygen or evolution of carbon dioxide. The rate of respiration in plants can be studied in moist germinating seeds that release carbon dioxide during respiration. To do the experiment, we require a test tube, a beaker containing distilled water, germinating seeds of bean, mustard and peat, a cork with a hole, a conical flask, measuring cylinder, freshly prepared potassium hydroxide solution, petroleum jelly, red, and a glass delivery tube with two bends at right angles. Procedure. Using a spatula, place about 30 germinating bean seeds in a conical flask. Pour 4 ml of potassium hydroxide solution into a measuring cylinder. Transfer the potassium hydroxide solution from the measuring cylinder into a small test tube. Tie a cotton thread around the neck of the test tube. Suspend the test tube in the conical flask above the germinating seeds. Close the mouth of the conical flask with a cork. Insert one end of a delivery tube into the conical flask through the cork and dip the other in a beaker containing water. Observe the position of the water level in the delivery tube. This is the initial reading of the water level in the delivery tube. Use your finger to take some petroleum jelly. Apply the petroleum jelly on the cork to make the apparatus airtight. Keep the apparatus undisturbed for 2 hours. Beta, here if you see on this, particularly if we are hanging the KOH, that is a freshly prepared potassium hydroxide, अगर हम hang कर रहे हैं अपनी small test tube में, इन्होंने conical flask बड़ा लिया है तो इसीलिए test tube size भी पूरा full size लिया है इन्होंने test tube. Otherwise, if you are provided with a small conical flask, then you are not to insert this big test tube in that. Okay, that things you will manage yourselves. Okay, आपको टेस्ट ट्यूब का रिक्वायरमेंट छोटी टेस्ट ट्यूब चाहिए, बड़ी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स यू विल बी आस्किंग फॉर द मटेरियल्स आल्सो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH सॉल्यूशन आपने इसके अंदर डाला, हैंग किया, एंड जर्मिनेटिंग सीड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय अस. ऑलरेडी जर्मिनेशन करवा के ये लेके आए जाएंगे बिकॉज दे आर द ओनली वंस रेस्पायरिंग. ठीक है, अगर हम इसमें रॉ सीड्स रखते हैं वो गलत ऑब्जर्वेशन, मतलब आएगी नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन ही नहीं आएगी. ठीक है, तो जर्मिनेटिंग सीड्स ओवरनाइट सोक करके नेक्स्ट डे लाए जाते हैं और आपको दे दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए. रेस्ट सेटअप यू विल बी क्रिएटिंग फॉर हेयर इन द वाटर इन द बीकर. इफ यू सी वाटर में हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 वो डाल देते हैं ताकि इसको कलरेशन मिल जाए. ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी नोटिस कर सकते हो वाटर के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट जो बेंट ट्यूब है उसकी ऑब्जर्वेशन लेना कितना मुश्किल है. ठीक है, फाइनली यू आर लुकिंग ऑन टू द इनिशियल लेवल. ठीक है, पहले तो इनिशियल लेवल को मार्क करना, देखना कहाँ पे है. फिर से यहाँ पे आपको टेम्परेरी मार्कर्स चाहिए, आप इसके ऊपर पेन ट्यूब के ऊपर अपना एक मार्क लगा सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद उस वाटर के लेवल के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर, वाटर के अंदर इंक नहीं जाए तो उसके ऊपर आपने अपना मार्कर यूज करके पेन ट्यूब के ऊपर आपने मार्क लगा दिया. दैट इज अ इनिशियल लेवल, सिंगल लाइन, जस्ट अ लाइन. ठीक है,
अब इसको आपने थोड़े समय रखना है, लाइक 15 to 20 मिनट्स ऑब्जर्वेशन लेते रहो, साथ साथ में अपना शीट कंप्लीट करने का काम करना है आपने बाय द टाइम। तो ऑब्जर्वेशन लेते रहेंगे, जैसे इसका लेवल बढ़ गया, you have to note the time and as well as you have to note the observation as it has increased. You mark the final level also, ठीक है, with the pen only. You can take this several times, 2 बार 3 बार आप अपनी observations ले सकते हैं, उससे आप कंपैरेटिव बता पाएंगे कि कितने टाइम में कितना यहाँ पे रेस्पिरेशन हो पा रहा है, ठीक है। In this particular setup, KOH is acting as an absorber of the carbon dioxide. क्योंकि इसको गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन लेगा कॉनिकल फ्लास्क की, ऊपर वैसलीन लगा के बंद कर दिया, बाहर से हवा जाएगी, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क की गैस ये लेता जा रहा है, ऑक्सीजन ये लेता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो सारी KOH लेते जा रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है अल्टीमेटली। अब उस वैक्यूम से क्या करेगा, ये जो हमने बेंड ट्यूब यहाँ इंसर्ट की है, ये दिख रही है बेंड ट्यूब कॉनिकल फ्लास्क में, यहाँ जो इंसर्ट की है उसकी एयर खींचनी शुरू करेगा ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए, तो दे विल बी जस्ट पुलिंग अप द एयर फ्रॉम द बेंड ट्यूब, और जैसे ये सक्शन लगेगा बेंड ट्यूब से, ये क्या है, पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा, एंड हेंस यू विल बी गेटिंग द वाटर लेवल राइज अप, ठीक है। तो वो आपको फाइनल लेवल भी मार्क करना है। इफ यू आर गेटिंग दिस एक्सपेरिमेंट as for the performing in your exams, you will be showing at least one observation for initial and final, at least one to the examiner, ठीक है, at least one initial final दोनों मार्क करके आपने शो करने। और जब आप फाइनल शो करते हो ना, जब आप फाइनल शो करते हो वहां पे फाइनल पे पानी भी उतना राइज हुआ पड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन टेक कलर्ड वाटर, जो चेंजेस हमने करनी है इस एक्सपेरिमेंट में, वी कैन टेक कलर्ड वाटर, एडजस्ट द साइज ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क एंड द टेस्ट ट्यूब along with it, right, and the seeds are necessarily not of these beans or the wheat or the mustard, जो भी उन्होंने बोले, they can be of any seeds, ठीक है। इन्होंने different seeds बोले हैं, तो different seeds के साथ भी आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। मैंने जैसे different times की बोली है, आप different seeds की ले सकते हो। इन द सेम टाइम 2 मिनट्स में wheat कितना रिस्पायर किया, मस्टर्ड कितना रिस्पायर किया, ऐसा, ठीक है। यहाँ हर 2 मिनट में कितना कितना रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो चीज हम बता सकते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ क्विकली इट इज राइजिंग अप द सेम लेवल ऑफ द स्केल, ठीक है। अगर सपोजिंग पहला इसका राइज हुआ 2 मिनट्स में 3 सेंटीमीटर से, ठीक है, 2 मिनट में 3 सेंटीमीटर राइज हुआ है, नेक्स्ट 2 मिनट्स में इज इट द सेम और इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज ही करेगा क्योंकि वो लिमिट होती रहेगी ना, कम होती जाएगी, तो ये चीज हमने यहाँ पे चेंजेस करना है, ठीक है जी, ओके। Powers repeats the same procedure for mustard and wheat. Observation. After 2 hours, you will see that the level of water has risen in the delivery tube at the end dipped in the beaker of water. We are not to take the observation at the end of 2 hours. Okay, we'll be taking it after 15 to 20 minutes and we'll be observing the things. ये बेंट ट्यूब है, ग्लास की होती है, कांच की बेंट ट्यूब होती है ये, हाँ ऐसे ही मिलेगी आपको, बेंट ट्यूब ही मिलती है पूरी प्रॉपर, ठीक है। इसमें इधर आपने फिक्स कर दिया ना कॉर्क के साथ कॉनिकल फ्लास्क पे, तो इधर आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं होती, दैट कैन बी लाइक सिंपल। आप यहाँ बीकर भी रख सकते हो, टेस्ट ट्यूब भी रख सकते हो, कलर्ड वाटर रख सकते हो, प्लेन वाटर भी रख सकते हो, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन होता है, जब हम KOH नहीं लगाते तो लाइम वाटर लगाते हैं, लेकिन उसमें कलर चेंज आता है, वेदर दे आर रिस्पायरिंग और नॉट, ठीक है। अगर हम कॉनिकल फ्लास्क में KOH नहीं डालते और इधर टेस्ट ट्यूब या बीकर लेके लाइम वाटर डाल देते हैं, तो कलर चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, और उसका रिएक्शन होगा लाइम वाटर से, टर्न्स मिल्की, है ना। तो वो जस्ट टू शो दैट द जर्मिनेटिंग सीड्स आर रिस्पायरिंग, बट टू शो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन द सेम सेटअप वी वांट टू हैव, ओनली चेंज वी कैन डू इज दैट ऑफ द कलर, ठीक है। Note this level as the final level. Conclusion. The rise in water level at the end of the delivery tube dipped in the beaker proves that germinating seeds release carbon dioxide during respiration. In the case of mustard and bean seeds, the rise in water level is relatively lesser because these seeds use fat and proteins as respiratory substrate and release a very small amount of carbon dioxide. This is they are talking about the RQ levels, है ना। तो ये कंपैरिजन भी आपको वैसे मतलब for your observations you can make it, right? Otherwise only using one type of a seed we have to perform this experiment, okay?
But in the case of wheat grains, the rise in water level is greater because they use carbohydrate as respiratory substrate. When carbohydrates are used as substrate, equal amounts of carbon dioxide and oxygen are evolved and consumed. Precautions. Ensure all connections are airtight. Use freshly prepared concentrated solution of potassium hydroxide. Anji beta, clear? Any doubt to anyone related with any of the two activities? Anji. पेपर क्रोमेटोग्राफी तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन टर्म 2 वी हैव यूज्ड दैट ओनली. हाँ जी. सो बेटा ये दोनों एक्टिविटीज क्लियर हैं. हाउ टू परफॉर्म द टू एक्टिविटीज, दैट इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा ऑन अपर एंड द लोअर सर्फेसेस एंड स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स. ठीक है. तो अपर एंड लोअर सर्फेसेस का पील जो है मैं उसका बता रही थी. अगर आप सिंपल एक लीफ लेते हो, जैसे दिस इज वन लीफ, ठीक है, यू ब्रेक इट लाइक दिस इज द अपर सर्फेस, दिस इज द लोअर सर्फेस. ठीक है. अगर आप इसको इस तरफ ब्रेक करते हो, ब्रेक करके ओपन कौन सा हुआ, अपर सर्फेस. ठीक है. लेकिन अटैच्ड कौन सा है, लोअर सर्फेस. आप इसको स्लाइड करोगे तो आपका लोअर सरफेस का पील निकल रहा है, वो आपको नजर आ जाएगा. ठीक है, वो आपको नजर आ जाएगा. लेकिन अगर आप इसको इस तरह ऊपर को टर्न करके ऐसे रिमूव कर रहे हो, ऐसे स्लाइड करोगे, तो दैट इज वी आर गेटिंग द अपर सरफेस पील. ठीक है. एंड द लीव्स व्हिच वी गिव यू, दे आर वेरी इजी टू रिमूव द पील फ्रॉम दोज लीव्स. ठीक है. Hardly you require 1 or 2 practices to remove the peel from there and you will be okay with that. Okay, it's not a big deal. It is not hard to take off the peel from there, but yes, it requires a certain practice. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के भी हम लोग सीधे ही आ जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता. ठीक है. तो फ्रॉम दिस टर्म टू एक्सपेरिमेंट we are done with all the performing, and except one, that is the urine sample testing is left now, and that you will be performing here only offline. And spotting part we are done, and the experimental parts we are done. Okay. Any doubt, any confusion to anyone? Mammalian blood smear का एक ही स्लाइड है, वो आपको मैंने ऑब्जर्वेशंस में दिखा देगा. हाँ, 3 स्पॉट्स हैं बेटा आपके, 3 कैटेगरीज हैं स्पॉटिंग की, 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज हैं आपके एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मिंग की. ठीक है. तो 4 ऑफ एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मिंग, 3 ऑफ योर कैटेगरीज ऑफ योर spotting, and then your practical syllabus is done. Okay. Anything else? Yes.